Okay, so hello and a very good evening everyone. আজি আপোনালোকৰ 10th of November আৰু আজি আমি GS3 আৰু 5 যোনটো security and defense part এটা আছে আমাৰ এই syllabus এটা important part হয় যেনেকৈ আপোনালোকৰ আজি যদি আসাম ট্ৰিবিউন চাই ৰাতিপুৱা তেতিয়া আপোনালোকৰ ধৰক border যোনবিলাক related issues আছে সেইবিলাকো ইয়াত ধৰক security issue আণ্ডাৰতে পৰে border area development etc সেইবিলাক ঠিক আছে so first of all welcome to the channel and if you like these videos kindly channel to promote koribo share koribo subscribe koribo videos kini sabo like koribo aru ei jonkhini moi series yat sai ase apnake belek playlist apnakor ase so apnake APSC karone ba onlaine kiba kibi exam karone jodi preparation kori ase so I hope apnakor ei videos blak ba series to helpful hobo hokolur babe আৰু যদি আপোনালোকে এই PDF মেটেৰিয়েলখিনি যোনখিনি মই ধৰক ক্লাছেছ লওঁ বুজাওঁ এই মেটেৰিয়েলখিনি যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে মোৰ পৰা চ' ইউ কেন কণ্টেক্ট মি মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ দিয়া থাকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনটোত চাব আপোনালোকে আৰু এই মেটেৰিয়েলছখিনি আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি পঢ়ি থাকিলে বা ইয়াৰ যদি প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই লয় আপডেটেড আপোনালোকে কপিজবিলাকো পাই থাকিব যোনবিলাক আপোনালোকৰ আপডেটছ আহে সেইখিনিও পাই থাকিব চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'ছখিনিও চাই থাকিব পাৰিব লগতে নিজৰ ক্লাছেছখিনিও ইয়াতে ফ্ৰীতে চাই থাকিব পাৰিব ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে কৈছোঁ যদি আপোনালোকে চেনেলটো ৰেগুলাৰলি ফ'ল' কৰি থাকে প্লেলিষ্টখিনিত ভিডিঅ' আপলোড হৈ থাকে চ' চাব পাৰিব ডেট ৱাইজ মই দি যাওঁ ঠিক আছে চ' লেটছ বিগিন দেন চ' আমাৰ নতুন ব্ৰেণ্ড নিউ কোৰ্চ হয় এইটো এতিয়া যদি চাই মানে যোনটো টপিক আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব গৈ আছোঁ ডেট ইজ ছিকিউৰিটি অ'কে চ' এতিয়া মই আপোনালোকক জাষ্ট এটা আইডিয়া দিব বিচাৰিছোঁ কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহে চাওক APSC CC মেইনছত এইখিনি কুৱেশ্যন আহিছিলে চ' এই 2023 মানে এই বছৰৰ প্ৰশ্ন হয় চ' এটাই প্ৰশ্ন দিছিলে আপোনালোকৰ এবাৰ এইটো আছিলে আপোনালোকৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়াৰ লগত জড়িত ঠিক আছে চ' কুৱেশ্যনটো আছিলে ডেছক্ৰাইব হাউ কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰেমছ ইন বৰ্ডাৰ এৰিয়া কেন বি হেল্পফুল ইন মেইনটেইনিং পিচ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ইন দ্য বৰ্ডাৰ এৰিয়াজ অফ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন অ'কে চ' যোনবিলাক আপোনালোকৰ যেনেকৈ বেলেগ প্ৰগ্ৰেমছ আছে কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰেমছ আছে ৰাইট বৰ্ডাৰ এৰিয়াজবিলাকত বিশেষকৈ আপুনি এটা বৰ্ডাৰৰ কথা লিখিব পাৰে যেনেকৈ ইণ্ডিয়া ভূটানৰ বৰ্ডাৰত আপুনি লিখিলে ধৰক বা যদি আমি অসমৰ কথা কওঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ ভূটান আৰু ধৰক বাংলাদেশ বৰ্ডাৰৰ কথা লিখিব লাগিব তাৰপিছত যদি আমি নৰ্থ ইষ্ট কৈছেতো চ' অৰুণাচলৰ কথাও লিখিব লাগিব তাত যেনেকৈ আপোনালোকৰ ভিলেজেছবিলাক আছে তাত যেনেকৈ বেলেগ মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ আণ্ডাৰত ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ প্ৰগ্ৰেমছ আছে ঠিক আছে চ' ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ প্ৰগ্ৰেমৰ কথা লিখিব পাৰে আপোনালোকে তেনেকুৱা বহুত কিবা কিবি আছে কালচাৰেল এক্সচেঞ্জেছ যোনবিলাক হয় আপোনালোকৰ ৰাইট বৰ্ডাৰ যোনবিলাক মেলা লাগে হাট লাগে সেইবিলাকৰ কথা লিখিব পাৰে চ' বেলেগ আপোনালোকৰ ৰাজ্যত বেলেগ যোনবিলাক ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ্ছ টাচ হৈ আছে তাৰ মানে বিষয় লিখিব পাৰে আপোনালোকে চ' কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰেমছৰ বিষয়ে লিখিব দিছিলে ঠিক আছে নেক্সট যদি চাই এইটো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ওপৰত আহিছিলে এই কুৱেশ্যনটো আৰু এইটো নেশ্যনেল ছিকিউৰিটিৰ লগত জড়িত হয় চ' এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে আপোনালোকৰ 2020ৰ GS3 পেপাৰত আৰু GS3 তেনেকৈ এইটো চাওক GS5ত যদিও আহিছে কিন্তু এইটো ছিকিউৰিটিৰ লগত জড়িত হয় সেইকাৰণে মই ষ্টাৰ্টিঙতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে GS3,5 বুলি দিছোঁ অ'কে কাৰণ ছিকিউৰিটিটো আপোনালোকৰ GS3টো পঢ়িব লাগে ছিকিউৰিটি বা বৰ্ডাৰ এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট GS5ৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা পঢ়িব লাগে চ' সেইকাৰণে আমি এইটো ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চ হয় চ' নেক্সট চাওক কুৱেশ্যন নম্বৰ 3টো ইয়াত 2020ৰ কুৱেশ্যন হয় দুটা আহিছিলে 2022ৰ APSC মেইনছত অহা নাই তেনেকুৱা ছিকিউৰিটিৰ লগত ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন বা ডিফেন্সৰ লগত জড়িত চ' এই কুৱেশ্যনটো যদি চাই এইটো আপোনালোকৰ যদি চাই এইটো আমাৰ চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফ'ৰ্চ CAPF এটা টপিকে আছে আমাৰ ঠিক আছে চ' সেই CAPFৰ ওপৰত আহিছিলে আৰু ৰোল প্লেড বাই দ্য CAPFৰ বহুত প্ৰকাৰ আছে আমি গোটেইখিনি চাম চ' এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে আপোনালোকৰ চ' মষ্ট প্ৰবেবলি 2024টো এটা দুটা প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰাই এটা দুটা প্ৰশ্ন মানে টপিকটোৰ পৰা আহেই চ' আমি এনেও ছায়েন্সৰ লগত জড়িত হয় অলপ ছায়েন্স এণ্ড টেকৰ লগতো জড়িত হয় সেইকাৰণে ভালকৈ পঢ়িব লাগে এতিয়া চাওক আমাৰ চিলেবাছত কি আছে we have to study the linkages between development and spread of terrorism so development আৰু terrorismৰ লগত জড়িত যোনখিনি আপোনালোকৰ লিংকেজ আছে কি কাৰণ হয় যোনবিলাক ধৰক যেনেকৈ আপুনি এটা চিম্পল এক্সাম্পলত আমি ক'ব পাৰোঁ যেনেকৈ যেতিয়া কোনোবা এটা জেগা কি হয় ধৰক আণ্ডাৰ ডেভেলপড হয় তেতিয়া কি হয় আপোনালোকৰ সেই এৰিয়াটোত ইউজুৱেলি যোনবিলাক ইউথ থাকে দে আৰ ইজিলি এট্ৰেক্টেড টুৱাৰ্ডছ আদাৰ এক্টিভিটিজ ৰাইট যেনেকৈ টেৰৰিজম হ'ব পাৰে বা তেনেকুৱা ক্ৰিমিনেল ৰিলেটেড এক্টিভিটিজো হ'ব পাৰে ৰাইট তাৰপিছত যদি চাই ৰোল অফ এক্সটাৰ্নেল ষ্টেট এণ্ড নন ষ্টেট এক্টৰ্ছ চ' ডেফিনেশ্যনটো আমি চাই ল'ম এক্সটাৰ্নেল ষ্টেট কি হয় নন ষ্টেট এক্টৰ্ছ কি হয় আৰু এই এক্সটাৰ্নেল ষ্টেট যেনেকৈ আৰু নন ষ্টেট এক্টৰ্ছ আছে ঠিক আছে তেনেকৈ ডিপ ষ্টেট বোলাও এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল এফেয়াৰ্ছত আপোনালোকে পঢ়িব ডিপ ষ্টেট বোলাও এটা বিষয় থাকে টপিক থাকে So what is the role of these external state and non-state actors in creating challenges to internal security? तो वो सब हम पढ़ेंगे यहाँ पे फिर हमको देखना है challenges to internal security through communication networks. So what are the challenges to internal security? पहले internal security क्या है वो देखेंगे हम लोग. Then we will see what are the challenges related to internal security and how this internal security what are the challenges posed by this communication networks and media social networking sites ठीक है so ये सारे
इंटरनल सिक्योरिटी में कैसे अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। और हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है वो पढ़ेंगे, एंड इट्स प्रिवेंशन, क्या क्या लेजिस्लेशंस है, ठीक है, वो सब हम देखेंगे। नेक्स्ट, सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द मैनेजमेंट इन द बॉर्डर एरियाज, यही क्वेश्चन आया था, देखिए बॉर्डर एरिया से रिलेटेड था, राइट। सो ऐसे हमको पिक करना है क्वेश्चंस, टॉपिक्स को ऐसे पिक करने हैं क्वेश्चन से, ठीक है। तो सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या है एंड द मैनेजमेंट इन द बॉर्डर एरियाज एंड लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विथ टेररिज्म, वो हम देखेंगे। एंड वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड मैंडेट्स, अलग अलग जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो जो एजेंसीज है सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है। सिक्योरिटी फोर्सेस अलग होते हैं, एजेंसीज अलग होते हैं, ठीक है, और उनके मैंडेट्स क्या होते हैं वो सब देखेंगे। ये जो क्वेश्चन आया था आपका CAPF वाला, ठीक है, इट वॉज फ्रॉम दिस पार्ट, ओके, दिस लास्ट वाला टॉपिक जो है। और एक क्वेश्चन जो आया था यहाँ पे, नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और लेजिस्लेशन सोशल मीडिया से रिलेटेड, ये यहाँ से आया था, ठीक है, रोल ऑफ मीडिया। ओके, सो हम पहला टॉपिक जो है हमारा, सो विल टॉक अबाउट द लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ टेररिज्म। नाउ सी, डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म बोथ आर इंटरलिंक्ड इन ए वेरी कॉम्प्लेक्स मैनर, ओके। दैट मीन्स यू कैन से डेवलपमेंट जहाँ पे होगा वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म कम होता है, इजंट इट। इसलिए आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स को बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं, इम्फेसिस देते हैं डेवलपमेंट के लिए। और सिमिलरली जम्मू एंड कश्मीर में भी बहुत सारा डेवलपमेंट वर्क चल रहा है, जस्ट बिकॉज दे आर इंटरलिंक्ड इन ए वेरी कॉम्प्लेक्स मैनर। अभी डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, देखो आप देख सकते हो कि डेवलपमेंट रिफर्स टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द पीपल्स सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट मीन सिर्फ सिर्फ मतलब पैसे आएंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ऐसा नहीं है, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। और उसमें देखेंगे वाइल एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, एक्सट्रीमिज्म रिफर्स टू द यूज ऑफ वायलेंस और रेडिकल मीन्स टू अचीव पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल गोल्स। सो देखिए दोनों ही चीज डिफरेंट होता है, ठीक है। डेवलपमेंट में क्या होता है, लोगों के जो सोशियो कल्चरल कंडीशंस हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, सोशियो इकोनॉमिक हो, सोशियो कल्चरल हो, ठीक है, डेमोग्राफिक कंडीशन जो हो लोगों का, वो क्या होता है, इंप्रूव होता है। वाइल एक्सट्रीमिज्म में क्या होता है, एक्सट्रीमिज्म वायलेंस और रेडिकलाइजेशन होता है, रेडिकल मीन्स यूज किया जाता है जस्ट टू अचीव सम पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल गोल्स, ठीक है। इसलिए आप देखोगे अभी रिसेंटली असम ट्रिब्यून में कल आया था ना NSCN का जो टॉपिक था, NSCN जो आपका IM है, इसक मुकाबला, जो ये NSCN IM का दो फैक्शंस है, एक जो खपलांग वाला है, एक क्या है, मेन जो NSCN के, वैसे तो ग्रुप्स बहुत है छोटे छोटे, लेकिन जो मेन NSCN के ग्रुप्स है दो, एक खपलांग वाला, एक इसक मुइवा वाला, ठीक है। सो इसमें अगर देखेंगे तो इसक मुइवा वाला जो ग्रुप है, दे हैड लाइक 2015 में उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके हिसाब से उन्होंने अपना जो आर्म्स वगैरह है वो आर्म स्ट्रगल उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, सीज फायर एग्रीमेंट हो गया था। उसके बाद देखेंगे तो रिसेंटली 2024 नवंबर में, इस महीने में ही, सिंस आपको पता है कि नागालैंड का भी अभी दिसंबर में स्टेटहुड डे आ रहा है, सो दे आर डिमांडिंग कि NSCN IM अभी डिमांड कर रहे हैं कि दे वांट ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज दे वांट अ सेपरेट लाइक उनके खुद के एक फ्लैग होना चाहिए, ठीक है। सो दे आर डिमांडिंग दिस थिंग्स। सो नाउ सी, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, अलग अलग जगह में कुछ लोगों को, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जिनको हम इंटरलॉक्यूटर बोलते हैं, ठीक है, इंटरलॉक्यूटर, LOCUTOR, इंटरलॉक्यूटर जो होते हैं, ये लोग क्या होते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जितने भी पीस टॉक्स वगैरह होता है, इट इज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू इंटरलॉक्यूटर, ये मीडिएटर का काम करते हैं, ठीक है, इंटरलॉक्यूटर्स। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अपॉइंटेड लोग होते हैं, बट दे एक्ट एज अ इंटरमीडिएटर, ठीक है, वो बीच में बातचीत चलाते रहते हैं। सो गवर्नमेंट क्या करते हैं, टाइम टू टाइम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो, कुछ जॉब रिलेटेड कुछ ये मतलब डेवलपमेंटल इश्यूज, कल्चरल इश्यूज, कुछ कल्चरल प्रमोशंस वगैरह करते रहते हैं, ताकि लोगों को आइसोलेशन ना फील हो, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में अगर देखा जाए तो जियोग्राफिकली आइसोलेटेड है रेस्ट ऑफ इंडिया से, और इसीलिए एक्सट्रीमिज्म यहाँ पे ज़्यादा देखा गया था। इट स्टार्टेड, इनफैक्ट आप देखोगे, नागालैंड से ही शुरू हुआ था, इफ़ यू सी द स्ट्रगल। फिर मिजोरम में जो मिजो नेशनल फ्रंट शुरू किया था, लालडेंगा लीडर थे उस टाइम पे, ठीक है। वैसे आप देखोगे हर एक स्टेट में, त्रिपुरा में अपना डिमांड शुरू हुआ, ठीक है। फिर अरुणाचल में जो लाइक अरुणाचल ड्रैगन फोर्स थे, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स राइज हुए हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दिस isolation policies, as well as you can say due to the geological isolation of the people of northeast from the rest of India, ठीक है। सो इसलिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एनीवेज अभी
इन इंडिया देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म। अभी अगर देखेंगे एक्सट्रीमिज्म का भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। कुछ एक्सट्रीमिज्म होते हैं जिसको हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट विंग, अगर आपको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में पता है तो यू नो लाइक आपको पता होगा एक क्या होता है, सेंटर थॉट होते हैं, एक लेफ्ट अलगाववादी जो होते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंकिंग, और एक राइट विंग होते हैं, ठीक है। सो यूजुअली जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, कुछ कंजर्व आप जैसे राइट विंग पार्टीज हैं, दे आर यूजुअली व्हाट दे आर कंजर्विस्ट, ठीक है, कंजर्विस्ट। जैसे आप अगर यूएस का इलेक्शन अभी हो गया, आप यू नो जो अभी डोनाल्ड ट्रम्प के पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, दैट इज ए कंजर्विस्ट पार्टी, राइट विंग पार्टी है। और जो वहाँ पे डेमोक्रेट्स थे दे वर लिबरल्स, ठीक है, लिबरल लेफ्ट विंग वाले होते हैं, इनको लिबरल्स बोलते हैं, ठीक है। और जो बीच में रहते हैं या ऐसा भी हो सकता है सेंटर राइट भी हो सकता है, यहाँ पे भी उनका आइडियोलॉजी यहाँ पे भी एक स्केल की तरह आप मेजर कर सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत अगर इनका झुकाव राइट विंग की तरफ कंजर्वेटिज्म की तरफ है, ठीक है, देन दैट इज नोन एज द सेंटर राइट विंग। अगर उनका जैसे सेंटर में हो सकता है उनका थिंकिंग, बट थोड़ा झुकाव उनका की तरफ, सो सेंटर लेफ्ट होगा, ऐसा होता है, ठीक है। अभी इंडिया में अगर देखेंगे तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कौन से हैं, जैसे आपके यू नो लेफ्ट, पहले लेफ्ट विंग जो थिंकिंग वाले हैं, ठीक है, जैसे आपको सीपीआई मिलेंगे, राइट। सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दे आर लेफ्ट विंग। सो सीपीआई का जो था वो एक ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप अलग से निकला है, सीपीआई एम, मार्क्सिस्ट, ठीक है। फिर लेनिनिस्ट थे, मार्क्सिस्ट थे, कार्ल मार्क्स को फॉलो करने वाले स्कूल के जो लोग हैं उनको सीपीआई एम बोलते हैं। फिर यहाँ से ही आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म शुरू हुआ, जिनको हम माओवादी बोलते हैं। जो माओ चाइना के माओ को आप पता है होगा शायद, कम्युनिज्म जो है उससे रिलेटेड है, सो माओइज्म से रिलेटेड है, सो माओइस्ट्स बोलते हैं इनको, ठीक है, MAOIST माओइस्ट बोलते हैं, माओइस्ट। और इनको नक्सलाइट्स भी बोलते हैं। नक्सलाइट क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो ये माओइस्ट के जो इफ यू सी इंडिया में जो जो इनका मतलब ग्रुप था, दैट केम अप फ्रॉम द नक्सलवाड़ी एक विलेज का नाम है वेस्ट बंगाल में। सो वहाँ से ये माओइस्ट के ग्रुप जो है मतलब वो थिंकिंग रखने वाले लोग, उनका राइज जो है ना नक्सलवाड़ी विलेज से हुआ था। सो इसलिए उनको नक्सलाइट भी बोलते हैं। किसी किसी जगह में उनको माओइस्ट भी बोलते हैं, किसी किसी जगह में नक्सलाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अभी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म भी है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म अगर देखेंगे कौन से हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट यूनियंस होते हैं, ठीक है, जैसे इंडिया में SIMI स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट जो है ऑफ इंडिया, सिमी को बैन किया गया है, ठीक है। ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं जो मतलब दे आर ऑफ द यू नो लाइक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में बिलीव करते हैं, राइट। सो बांग्लादेश से बहुत सारे ग्रुप्स हैं, असम में अगर देखोगे तो दे आर डीलिंग विद दिस थिंग्स लाइक आप इसको छोड़ो, ये तो स्टूडेंट यूनियन है जिसको बैन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेकिन और भी कुछ ग्रुप्स हैं जो हार्डकोर ग्रुप्स है, अलकायदा वगैरह है, अलकायदा इन इंडिया भी है, ठीक है, इसको AQIS बोलते हैं, अलकायदा AQIS इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं। फिर तालिबान है, फिर आप बोल सकते हो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, बोको हराम है, नाइजीरिया में जो है बोको हराम ग्रुप है, ठीक है, ऑल दीज आर रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट्स। फिर कुछ होते हैं जो इथनिक एक्सट्रीमिज्म में बिलीव करते हैं, ठीक है, इथनिसिटी से रिलेटेड है। इथनिसिटी से मतलब इथनिक, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो दिखाई देता है एक्सट्रीमिज्म, दिस इज ए फॉर्म ऑफ इथनिक एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। जैसे फिर सेसिशनिस्ट मूवमेंट्स भी होते हैं, दिस आर आल्सो काइंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, क्योंकि वायलेंस यूज होता है यहाँ पे, एक्सट्रीम वायलेंस, ठीक है। सो दिस पॉजेस ए सीरियस चैलेंज टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। सो अभी ये हमको पता चल गया है डेवलपमेंट क्या है, एक्सट्रीमिज्म क्या है, इंडिया में कौन से टाइप ऑफ एक्सट्रीमिज्म है, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे व्हाट आर द लिंकेजेस, क्या क्या रिलेशंस है, लिंकेजेस है बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म। पहले हम देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। सो जैसे देखिए, डेवलपमेंटल चैलेंजेस क्रिएट फर्टाइल ग्राउंड फॉर द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज टू टेक रूट, ठीक है। मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में बिकम ससेप्टेबल टू रेडिकलाइजेशन। सो क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज में हमने देखा कि जो अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब अंडर डेवलप्ड है, जैसे कश्मीर का एक जो हाल था एक टाइम पे अंडर डेवलपमेंट, सो नॉर्थ ईस्ट का भी ऐसा ही हाल था, राइट, अंडर डेवलपमेंट। सो ये सब जगह में क्या हुआ, इट बिकेम अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज टू टेक प्लेस। सो यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज के लोग थे, उन्होंने क्या किया, ये बोलने लगे कि आपको, जैसे आप अगर देखोगे नक्सलाइट एरियाज में भी अगर देखोगे तो लोगों को आइसोलेट करके रखते हैं, जस्ट वाई बिकॉज ये चाहते हैं वो जो
थिंकिंग वाले लोग हैं उस टाइप के एक्सट्रीमिज्म के, सो वो चाहते हैं कि जो लोग हैं वो मतलब थोड़ा आइसोलेशन में रहें, और उसमें उन्नति अगर कम है उस जगह में, तो क्या होता है, जो यूथ होते हैं यूजुअली, वो क्या होते हैं, दे बिकम ससेप्टेबल टू रेडिकलाइजेशन। उनको रेडिकलाइज करना मतलब उनका ब्रेन वॉश करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। सो हमने देखा कि डेवलपमेंट अगर कम होता है, दैट मीन्स सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अगर कम है, देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सट्रीमिज्म, मतलब एक्सट्रीमिज्म वहाँ पे होना ही है। दूसरा क्या है, रीजनल डिस्पैरिटीज। अगर मान लीजिए कहीं पे रीजनल इम्बैलेंसेस होते हैं, ठीक है, इन डेवलपमेंट, इट विल एक्सरबेट द प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है, जैसे आप मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे 7 सिस्टर स्टेट्स है, सो एक पर्टिकुलर स्टेट या एक दो स्टेट्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन बाकी सारी स्टेट्स जो है ऐसे ही अंडर डेवलप्ड है। तो उसमें भी क्या होता है, रीजनल डिस्पैरिटीज, उनको फील होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट को ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है एंड वी आर बीइंग लेफ्ट आइसोलेटेड। इससे भी क्या होता है, रीजनल डिस्पैरिटीज क्रिएट होते हैं, इनइक्वालिटीज आते हैं, and this become, that is why this can also be, you can say these areas can be become breeding grounds for the extremist activities, ठीक है। unequal distribution of resources, फिर lack of inclusive development contribute to alienation and resentment। so आप देखेंगे जैसे कुछ कुछ जगह में क्या होता है, कुछ जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स होते हैं वो सोचते हैं कि जो रिसोर्सेज हमारे यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उतना रिसोर्सेज, जैसे अगर उन्होंने मान लीजिए 100% ले गए हैं, लेकिन हमारा जो डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट देते हैं जस्ट 5% है, तो उनको ये फील होने लगेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनजस्टिफाइड है, अनइक्वल है, क्योंकि आप यहाँ से तेल ले जा रहे हो, यहाँ से चाय पत्ती ले जा रहे हो, एंड यू आर जस्ट गिविंग 5% ऑफ द रेवेन्यू, सो दैट विल क्रिएट ए फीलिंग ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। और इसलिए भी क्या होता है, दिस विल ब्रिंग इनटू माइंड द फीलिंग ऑफ एलियनेशन। लोगों को यहाँ पे जो लोग होते हैं उनको एलियनेशन और रिसेंटमेंट फीलिंग आता है। इससे क्या होता है, दिस पीपल बिगिन टू डेवलप दिस रेडिकलाइजेशन एंड यू कैन से मार्जिनलाइजेशन होता है, सोसाइटीज का रेडिकलाइजेशन होता है, उसके बाद दे गो टुवर्ड्स एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। सो हमने दो कंडीशंस अब तक देखा है, एक है सोशियो इकोनॉमिक अगर डिस्पैरिटीज है और रीजनल डिस्पैरिटीज है, तब क्या होता है, एक्सट्रीमिज्म हो सकता है। तीसरा क्या है, आइडेंटिटी बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। जैसे देखिए, डाइवर्स सोसाइटीज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस रिलीजियस, एथनिक एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज। हर एक सोसाइटी का अपना क्या है, सिंस इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री, हर एक सोसाइटी में जो आपके रिलीजियस लाइंस में, एथनिक लाइंस में हो या लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज क्या डिफरेंट होते हैं। If these identities are not adequately recognized and accommodated in the developmental process, it can fuel tensions and lead to extremist movements, ठीक है। अगर लोगों को ये फीलिंग आया कि they are being secluded, they are not being identified, right, this may also create a feeling of alienation, ठीक है। फोर्थ रीजन आप बोल सकते हो लैक ऑफ सोशल कोहेशन। अगर सोशल कोहेशन कम है सोसाइटी में, ठीक है, कोहेशन मतलब बॉन्डिंग। जैसे जैसे आप एग्जांपल, बढ़िया एग्जांपल ले सकते हो मैथीज एंड कुकीज का। मैथीज का और कुकीज का जो कॉन्फ्लिक्ट है, राइट, वो किस लिए हुआ था, ड्यू टू द लैक ऑफ सोशल कोहेशन। हम ये सब चीज़ें डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में, व्हेन वी विल टॉक अबाउट द सीन इन मणिपुर, तब हम पीछे है स्लाइड्स में, लेकिन दिस इज द इंट्रोडक्शन, इसलिए हम जस्ट एग्जांपल के तौर पे इसको यूज़ करें, ठीक है। तो याद रखिए, मणिपुर में जो हो रहा है, दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ सोशल कोहेशन, ठीक है। सो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स अलोन मे नॉट काउंटर एक्सट्रीमिज्म इफ सोशल कोहेशन इज लैकिंग। लोगों के बीच अगर सोशल बॉन्डिंग थोड़ा वीक है, दैट मे लीड टू व्हाट, दैट मे लीड टू एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। तो prejudices, discrimination and communal tensions undermine the efforts to build a united society. So अगर हम ये बोलते रहेंगे कि ये वाले ट्राइब से है, ये वाले ट्राइब से है, ऐसे ऐसे बोलते रहेंगे, तो क्या होगा, we will never become a united society, ठीक है। सो हमको एक होके रहना है, बिकॉज इंडिया अगर देखेंगे, हमारा कंट्री क्या है, हमारी सोसाइटी में यूजुअली क्या होता है, वी सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो यहाँ पे हमको यूनिटी मेंटेन करना है एमॉन्ग आवर डाइवर्सिटीज, ठीक है। एक दूसरे के रिलीजन को हो, एक दूसरे के कल्चर को हो, एक दूसरे के जो भी हमारे खुद के मतलब फॉलोइंग्स हो, बिलीफ सिस्टम हो, उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सो अगर नहीं होता है तो सोसाइटी में यूजुअली क्या होता है, इट प्रोमोट्स और इट बिकम्स द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज। सो इट इज क्रूशियल टू प्रोमोट इंक्लूसिव डेवलपमेंट दैट फॉस्टर्स सोशल इंटीग्रेशन एंड एड्रेसेस द ग्रीवेंसेस ऑफ मार्जिनल कम्युनिटीज। जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, ठीक है, जिसको नेग्लेक्ट किया जाता है, उनको भी लेके पॉलिसीज बनाने होते हैं, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स होने पड़ते हैं,
होना चाहिए, ठीक है। ये सब होने से ही आपका क्या होगा, सोशल कोहेशन बढ़ेगा एंड तब सोसाइटी में पीस रहेगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी द मेजर्स टू एड्रेस द रूट कॉजेस ऑफ वायलेंट मूवमेंट्स। सो वायलेंट मूवमेंट्स बहुत सारे हो गए हैं इंडिया में, असम में। सो इसमें अगर देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में भी, सो इसके कुछ मतलब मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे हम लोग पॉलिटिकल डायलॉग कर सकते हैं, राइट। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं उन जगह का। सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ा सकते हैं, सोशल इंटीग्रेशन बढ़ा सकते हैं। दैट मीन्स वी हैव टू यूज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट मेजर्स। सो पॉलिटिकल डायलॉग आप बोल सकते हो सॉफ्ट मेजर में आएगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सॉफ्ट मेजर में आएगा, सोशल इंटीग्रेशन सॉफ्ट मेजर में आता है, सिक्योरिटी मेजर्स हार्ड मेजर में आ सकता है, ठीक है। जैसे अगर आपने आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, अप्सपा एक्ट यूज कर दिया, या यूएपीए एक्ट जो है आपका, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है, ये सब अगर ये 58 वाला है 1958, और यूएपीए 1967 आई थिंक, देख लीजिए, ठीक है। ये दोनों हम बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन देखिए दिस आर सम हार्ड मेजर्स। लेकिन यूजुअली क्या होता है, पॉलिटिकल डायलॉग इज द बेस्ट वे। और जैसे आप देखोगे अभी जो मैंने एनएससीएन आयन का केस बोला था, 2015 का जो पीस एकॉर्ड है, बोरो पीस एकॉर्ड के बारे में बोल सकते हो, जो 2020 में हुआ था, ठीक है। बोरो थर्ड पीस एकॉर्ड था। इससे पहले भी बोरो पीस एकॉर्ड्स हो गए, तो ये थर्ड वाला था। फिर एनडीएपी ने इसमें सरेंडर किया था, राइट। उससे पहले जो सेकेंड वाला बोरो पीस एकॉर्ड था, उसमें बीएलटी ने सरेंडर किया था, मतलब गवर्नमेंट के साथ बातचीत शुरू हो गया था, तो आर्म्स तो रखना ही पड़ेगा, इजंट इट। सो दिस वर सम ऑफ द सक्सेसफुल डायलॉग्स वी कैन से। और अगर आप सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बोलते हो, तो आप बोल अलग अलग जो गवर्नमेंट, जैसे आपका अलग अलग स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करते हैं, आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। स्टेटहुड डे सेलिब्रेट कर सकते हो, दिस आर एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट मेजर्स। सिक्योरिटी मेजर में आप अपस्पाइक यूएपीए मेंशन कर सकते हो। सोशल इंटीग्रेशन में आप लिख सकते हो अबाउट डिफरेंट कल्चरल फेस्टिवल्स, आप बोल सकते हो, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, राइट। अभी रिसेंटली वांगला फेस्टिवल, वांगला जो है मेघालय में, 1000 ड्रम्स वाला जो गारो ट्राइब के फेस्टिवल होते हैं। ये सारे फेस्टिवल्स में आजकल तो ऐसा नहीं है सिर्फ मेघालय में होता है, वांगला फेस्टिवल में इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर से लोग आते हैं देखने के लिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल देखने के लिए आते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र फेस्ट होता है, राइट, जूनबिल मेला होता है। यू कैन से दिस आर सम ऑफ द मेजर्स जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट ट्राई टू प्रोमोट दिस फेस्ट एंड ब्रिंग द पीपल क्लोजर, ताकि सोशल कोहेशन बढ़ सके, ठीक है, सोसाइटी में। Next, we'll see some examples how development and extremism are linked in India. अभी let's talk about left wing extremism और नक्सलिज्म. So left wing extremism कब होता है? जब फार लेफ्ट की तरह आइडियोलॉजी होता है। मैंने जब दिखाया था आपको स्टार्टिंग में, आपको याद होगा, दिस यहाँ पे जो आपका अगर थिंकिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहीं पे यहाँ पे अगर होता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, सेंटर में नहीं है, लेकिन यहाँ आ गया, दैट मीन्स यू आर फार राइट, सॉरी फार लेफ्ट, ठीक है। सो फार राइट भी आपका एक्सट्रीमिज्म हो सकता है, ठीक है। ये एक अलग टाइप का एक्सट्रीमिज्म होता है, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं इसको, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं। मतलब हर चीज़ का एक्सट्रीम हमेशा खराब होता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखेंगे, जो फार लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म आइडियोलॉजी है, ये ओरिजिनेट हुआ था नक्सलवाड़ी नाम का एक विलेज था वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और ये शुरू हुआ था कब, 1967 में, या यू हैव टू रिमेंबर द ईयर। तो नक्सलिज्म कब शुरू हुआ था, 1967 में शुरू हुआ था। क्यों क्यों हुआ था, देखिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म स्प्रेड हुआ था in eastern India, where the tribals, Dalits and जो लैंडलेस लेबरर्स थे, they felt exploited and neglected. So आपको पता होगा इंडिया का हिस्ट्री जो है, इट इज फुल ऑफ लाइक एक्सप्लॉयटेशंस ब्रिटिशर्स ने किया था। उसके बाद अगर देखेंगे इंडिपेंडेंस के बाद भी ऐसे गवर्नमेंट्स आए हैं, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हो आपका, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वहाँ पे एडिक्वेट केयर नहीं लिया गया था उस टाइम पे। इसकी वजह से दिस पीपल, द दलित्स, द ट्राइबल्स एंड द लैंडलेस लेबरर्स, दे फेल्ट एक्सप्लॉयटेड एंड नेग्लेक्टेड, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डेवलप हुआ था, एंड इट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट बाय क्रिएटिंग इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी। कहीं पे भी कुछ वायलेंस हो, सो ऐसी जगह में लोग तो रहना नहीं चाहेंगे ना। सो लोगों को बिजनेस करने के लिए या कहीं पे कुछ पीसफुल वर्क करने के लिए, कुछ नेशनल गेम्स या कोई कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज करना है, कुछ भी करना है वहाँ पे, ठीक है, फॉरेन टूरिस्ट आना है, सो वहाँ पे क्या चाहिए, हमको स्टेबिलिटी चाहिए। असम में भी पहले रेवेन्यू का बहुत प्रॉब्लम था, वाई, क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म वगैरह बहुत कम होता था, लोग नहीं आना चाहते थे यहाँ पे। फॉरेन का तो छोड़ो, जो मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया से लोग हैं, वो लोग भी नहीं आना चाहते थे, वाई, बिकॉज यहाँ पे इंस्टेबिलिटी एंड मतलब सिक्योरिटी इश्यूज था, ठीक है। सो
Left wing extremism affects development by creating instability and insecurity. The government has adopted security and developmental measures to deal with left wing extremism. ठीक है. दूसरा अगर एग्जांपल ले सकते हैं आप डेवलपमेंट एक्सट्रीमिज्म का, ये है जो क्लासिकल एग्जांपल है इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया. अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो सेशनिस्ट मूवमेंट है, ठीक है, जैसे ऑटोनॉमी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे जैसे कुछ ग्रुप्स होते हैं, आपको पता है, जैसे नागालैंड में शुरू हुआ था सेशनिस्ट मूवमेंट शुरू में, ठीक है, अराउंड 1964. उसके बाद मिजोरम में शुरू हुआ, ये फिर चलता रहा, त्रिपुरा को भी चाहिए, देन मेघालय को भी चाहिए, राइट, देन ऑल द स्टेट्स इमर्ज्ड, मतलब असम को छोड़ के और 5 स्टेट्स एक्स्ट्रा आ गए कम्प्लीटली. ठीक है. फिर अगर देखेंगे उन स्टेट्स के बीच भी कुछ ग्रुप्स थे जिनको मतलब सेसिशनिस्ट उनका मूवमेंट कंटिन्यू रहा. दैट मीन्स उनको स्टेटहुड नहीं, उनको नेशनहुड चाहिए, मतलब उनको अपना खुद का कंट्री चाहिए. ठीक है. ऐसे कुछ डिमांड्स आते रहे फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन इथनिक आइडेंटिटी. ठीक है. इंसर्जेंसी इमर्ज्ड इन नॉर्थ ईस्ट ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, जैसे कुछ हिस्ट्रिकल लीगेसी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, यहाँ पे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है नॉर्थ ईस्ट में. ठीक है. दीज आर सम ऑफ द रीजंस. इनसिक्योरिटी चैलेंजेस, इंटरनल सिक्योरिटी, अभी ठीक है, इंसर्जेंसी चैलेंजेस, इंटरनल सिक्योरिटी एक्सेट्रा जो होता है. ठीक है. बाय एंगेजिंग, ऐसे कैसे, मतलब जो चैलेंजेस आता है ना, इंसर्जेंसी चैलेंजेस ड्यू टू इंटरनल सिक्योरिटी, वो कैसे आए थे? ड्यू टू आर्म कॉन्फ्लिक्ट विद सिक्योरिटी फोर्सेस. ठीक है. इंसर्जेंसी अफेक्ट करता है डेवलपमेंट बाय, कैसे? बाय क्रिएटिंग इंस्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. जस्ट लाइक हमने देखा था, हर एक यहाँ पे अगर देखोगे एक चीज़ कॉमन है, डेवलपमेंट अगर नहीं है तो एक्सट्रीमिज्म होना ही है. ठीक है. डेवलपमेंट मतलब ये वर्ड सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, आप मान लीजिए इसको सोशल डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट. ठीक है. हर एक एंगल से देखिए, ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट, आप बोल सकते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट, एक एंगल से देखिए. रिलीजियस आइडियोलॉजी के बेस में अगर देखेंगे, सो रेडिकल आइडियोलॉजी जहाँ पे होता है, ठीक है, रेडिकल आइडियोलॉजी क्या होता है? देखिए, रेडिकल आइडियोलॉजी ऐसा एक थिंकिंग होता है जहाँ पे क्या होता है, कुछ अगर वायलेंस हुआ तो कुछ रेफरेंस दिया जाता है कि हमारे धर्म में या हमारे कल्चर में या हमारे मतलब जो धर्म ग्रंथ है, ठीक है, वहाँ पे जस्टिफाइड है कि वायलेंस करना है हमको, अगर जैसे एक्सट्रीमिज्म हमको करना है, राइट, वो जस्टिफाई करता है कि वो एक्सट्रीमिज्म क्यों करें, बिकॉज ड्यू टू द रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अलाउड, पहले भी हुआ था, राइट. ऐसे एग्जांपल्स दिए जाते हैं. सो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म भी एक आप बोल सकते हो, यू कैन से एग्जांपल के हिसाब से आप यूज कर सकते हो. इट अफेक्ट्स डेवलपमेंट बाय क्रिएटिंग इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी. गवर्नमेंट इज अडॉप्टेड सिक्योरिटी, लीगल एंड सोशल मेजर्स टू डील विद इट. ठीक है. सो हमने देखा कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे. सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस. सो ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. आई जस्ट शो यू द मटेरियल्स हियर, कैसा है आपका, कि आपको एक थोड़ा आइडिया लगे. जो हम लोग पीपीटीज बना रहे हैं, यहाँ पे भी आज बहुत क्वेरीज आ रहा था अबाउट द कोर्स मटेरियल्स, तो आप देख सकते हो कैसा है. सो ये जो है, आप अगर ये पीपीटीज आप हमसे ले लेंगे तो क्या होगा, इफ़ यू बाई दिस पीपीटीज, जो आपका डेली क्लासेस चल रहा है वो आप देख पाएंगे. ठीक है. प्लस मैं जो पढ़ाते जाऊंगा उसके साथ आप रिलेट करके खुद का नोट्स को भी अपडेट कर सकते हो. और देखिए, और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ जिन्होंने ज्वाइन भी किया है उन लोगों को भी, कि ये जो पीपीटीज में या मटेरियल्स देता हूँ ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप्स में, वो मटेरियल्स आप याद रखिए, फाइनल कॉपीज है नो डाउट, बट यहाँ पे भी एड ऑन्स होते रहते हैं. मैंने बोला था आप लोगों को कि हर 15 या 1 महीने के बाद, ठीक है, आपको ये चेक करना है, इंश्योर करना है कि आपका जो नया पीपीटीज मैंने अपलोड किया है उसमें कुछ चेंजेस हुआ है क्या. जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ तक ये पीपीटी आपका, जैसे आपने प्रिंट आउट निकाली है यहाँ तक, ठीक है, इसके बाद एक्स्ट्रा जैसे यहाँ पे अगर आपको 2 पेजेस बीच में मिल गया, ये टॉपिक शुरू होने से पहले 2 पेजेस मिल गया, तो उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आप क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा यहाँ पे जगह छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा उसको लिख सकते हो. सो ऐसे करके लिखिए. ठीक है. और टाइम टू टाइम चेक करते रहिए कि कुछ अपडेट्स आए हैं क्या. ठीक है. सो ये थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि मैं करंट अफेयर्स अपडेट करता रहता हूँ. फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको करंट अफेयर्स कैसे अपडेट करता हूँ मैं आपको दिखाऊंगा. जिससे ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट शुरू करेंगे, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी. ठीक है. इसमें हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, टॉपिक्स दिखा देता हूँ आपको. फिर चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, ये टॉपिक्स पढ़ेंगे. इसमें कम्युनिकेशन नेटवर्क, फिर जो आपके क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है एज पर आई टी एक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ेंगे यहाँ पे. रोल ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे. फिर
साइबर अटैक्स वगैरह देखेंगे, साइबर चैलेंजेस क्या है, साइबर वॉरफेयर के बारे में पढ़ेंगे। सो मैं ये सब जस्ट ऊपर ऊपर से दिखा रहा हूँ। उस दिन मैंने एक वीडियो भी बनाया था आपको हमारी जो मटेरियल्स है उसका। सो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट टेल यू दिस थिंग, जस्ट ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे मैंने ऐड किया है आज, ठीक है। जैसे आज के न्यूज़पेपर में कुछ टॉपिक आया था रिगार्डिंग सम बॉर्डर एग्रीमेंट्स। सो ये वाला जो है आपको पुराने वाले जिन्होंने कोर्स को एनरोल किया है, आपके पास अगर पीपीटी है तो आपने शायद देखा होगा कि यहाँ तक आपके पास है, लेकिन ये दोनों जो है स्लाइड अभी ऐड किया गया है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा अभी, ये आपको एक्स्ट्रा से दे दूंगा, ठीक है, या हो सकता है मैं यही फाइल आपको दे दूँ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ तक तो आपका है, क्योंकि इसके बाद आपका ये टॉपिक शुरू होता है कोस्टल सिक्योरिटी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये जो बीच में ये 3 पेजेस मैंने दिया है, तो इसमें से आपको निकालना है क्रक्स, ठीक है। जैसे आपको अगर कल की न्यूज़पेपर में आया था ये वाला कि अभी होम मिनिस्ट्री जो है वो मॉडल एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस में मॉडल स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे एसटीएफ फॉर द स्टेट्स, ठीक है, फॉर द स्टेट्स इन द यूनियन टेरिटरीज। क्यों? बिकॉज हमको एक कॉमन स्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म चाहिए टू डील विद टेररिज्म, ठीक है। फिर आज के न्यूज़पेपर में आया था अबाउट द बॉर्डर एग्रीमेंट्स जो असम एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। सो इसमें स्पेसिफिकली असम और मेघालय के बारे में आया था, बट और हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी देखेंगे तो बॉर्डर एग्रीमेंट्स हमारे मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट जो है असम का वो 4 स्टेट्स के साथ है, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम एंड नागालैंड। तो ये मैंने एक्स्ट्रा आपको दे दिया, ठीक है। जैसे आप देखो असम मिजोरम के बीच जो बॉर्डर मतलब असम में 3 डिस्ट्रिक्ट है, कछार, करीमगंज और हाइलाकांडी, ठीक है। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मिजोरम के 3 डिस्ट्रिक्ट्स जैसे काचार के साथ आइजॉल शेयर करता है बॉर्डर, करीमगंज के साथ कोलासिब वाला डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है बॉर्डर, और हाइलाकांडी के साथ मामिट वाला डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है बॉर्डर, ठीक है। तो ये आप अपडेट कर लेंगे। जैसे असम नागालैंड का है, असम अरुणाचल में जो है यहाँ पे जैसे कुछ एग्रीमेंट के बारे में मैंने दिया है, यहाँ पे कुछ कितनी डिस्प्यूटेड एरियाज अभी भी बाकी है, ये अपडेटेड डेटा है, ठीक है। और नमसाई डिक्लेरेशन के बारे में मैंने यहाँ पे दिया है जो 15 जुलाई 2022 में साइन हुआ था, नमसाई डिक्लेरेशन बिटवीन असम एंड अरुणाचल। नमसाई एक जगह का नाम है अरुणाचल में, ठीक है। सो यहाँ पे अरुणाचल ने जो है इनिशियली 123 विलेजेस क्लेम किया था, दैट दैट विलेजेस बिलोंग जो असम के थे, दैट बिलोंग्स टू नागालैंड अरुणाचल, ऐसे उन्होंने बोला था। फिर डिक्लेरेशन के बाद समझौता हुआ कि इट वॉज मिनिमाइज टू 86 विलेजेस। सिमिलरली असम ने भी कुछ क्लेम किया था अरुणाचल के बॉर्डर में जो असम के विलेजेस हैं, ठीक है। सो अभी प्रेजेंट देखा जाए तो असम और अरुणाचल के बीच 86 विलेज से जाके अभी 38 डिस्प्यूटेड एरियाज है एट प्रेजेंट, ओके। सो नामसाई डिक्लेरेशन के टाइम पे 86 विलेज था। अभी अगर देखेंगे लास्ट ईयर अप्रैल 2023 के बारे में अगर देखेंगे अभी भी पीस टॉक्स चल रहा है। सो प्रेजेंट याद रखें अभी 86 नहीं है, कितना है 38 डिस्प्यूटेड एरियाज है, ठीक है। सो ऐसे जो करंट अपडेट्स है मैं यहाँ पे देता रहूँगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप कहाँ कहाँ डिस्प्यूटेड एरियाज है। मेघालय में यहाँ पे है, कार्बी आंगलोंग ये वाला है, ठीक है। मेघालय में कामरूप में और कार्बी आंगलोंग में है, मतलब मेघालय के साथ हमारा डिस्प्यूट्स है। सो यहाँ पे मिजोरम में मैंने बोला था आपको 3 डिस्ट्रिक्ट्स है आसाम के, ठीक है, यहाँ पे बराक में। फिर ये वाला जो है मणिपुर नागालैंड कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच भी चल रहा है जुको वैली में, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे देखेंगे सो नागालैंड क्लेम करता है ये गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट्स में और शिवसागर में कुछ जगह है, ठीक है, कार्बी आंगलोंग के पास कुछ वेस्ट कार्बी आंगलोंग वाले एरिया। यहाँ पे अरुणाचल क्लेम करता है कुछ पार्ट्स ऑफ सोनीतपुर एंड सम पार्ट्स ऑफ लखीमपुर एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सो कुछ डिस्प्यूटेड एरिया से यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, पढ़ सकते हो। देन यहाँ पे भी मैंने दिखाया है, यहाँ पे देखिए जैसे ये आप मैंने जो बोला था मिजोरम के 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो शेयर करता है आसाम की 3 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ अपना बॉर्डर। सो यहाँ पे कुछ यू कैन से डिस्प्यूटेड एरियाज है ये असम और मिजोरम के बीच, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो अरुणाचल और नागालैंड का जो है ये सारा मैंने एक्स्ट्रा दे दिया है, आप पढ़ सकते हो इसको। एक्स्ट्रा आपको अगर लिखना है तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर जैसे ऐसे ही अपडेट्स में देता रहूँगा। फिर मटेरियल्स देखिए आप ऐसा होगा, ठीक है। सो अगर आपने ये मटेरियल्स ले लिया तो जो हम क्लासेस रेगुलरली लाते रहते हैं उसके साथ ही आप ये मटेरियल्स को पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। आप पहले ही पढ़ सकते हो, उसके बाद क्लासेस भी देख सकते हो, जो मैं यूट्यूब में वीडियोस लाता हूँ उसको भी चेक कर सकते हो। क्लासेस फ्री है सबके लिए, क्लास हर कोई देख सकता है, लेकिन मटेरियल्स क्योंकि बनाने में या अपडेट करने में न्यूज़पेपर पढ़ने में डेली मुझे देखना पड़ता है। सो आई हैव टू लाइक कीप ऑन अपडेटिंग दिस मटेरियल, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। जस्ट इसके लिए मतलब मैंने ये एक फीस रखा है आपके लिए, ठीक है। सो दिस इज इट। यहाँ से शुरू होता है आपका डिफेंस प्रोडक्शन, यहाँ से शुरू होता है आपका CAPF वाला जो टॉपिक्स थे, CAPF और सिक्योरिटी एजेंसीज। सो हम देखेंगे about बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF,
सीआरपीएफ के बारे में पढ़ेंगे, रैपिड एक्शन फोर्स जो सीआरपीएफ के अंदर है, कोबरा बैटेलियन सीआरपीएफ के अंदर है। ठीक है, मैं सिर्फ सीआरपीएफ के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सीआरपीएफ के अंदर जो बैटेलियंस है वो भी पढ़ेंगे, जैसे रैपिड एक्शन फोर्स है, कमांडो बैटेलियंस है। ठीक है, फिर आईटीबीपी है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, देन आईएसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल, एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, फिर असम राइफल्स हैं, फिर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी है, फिर इंडियन कोस्ट गार्ड्स है। फिर यहाँ से शुरू होता है आपके सिक्योरिटी एजेंसीज, जो जैसे रॉ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी है, फिर एनटीआरओ है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेट ग्रिड है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, एनआईए अमेंडमेंट एक्ट वगैरह हम पढ़ेंगे। फिर मल्टी एजेंसी सेंटर्स है, पुलिस रिफॉर्म्स हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आसाम के बारे में पढ़ लेंगे, यहाँ पे क्या क्या पुलिस रिफॉर्म्स हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट है, प्रकाश सिंह बादल केस वाले। कॉन्टेम्प्रेरी टॉपिक्स का मैंने यहाँ पे सिर्फ सेपरेटली एक मिसलेनियस लेके आया मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, सो बहुत बड़ा फाइल है, ऑलमोस्ट 192 पेजेस के है। नॉन काइनेटिक वारफेयर में आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी है। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन वारफेयर अभी तो चल रहा है, जो इंफॉर्मेशन वारफेयर का टाइम है, जैसे बोम थ्रेट प्रोटोकॉल्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का। फिर पीस एकॉर्ड्स हम सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कौन से पीस एकॉर्ड्स हो गए, स्पेशली बोरो पीस एकॉर्ड। फिर हम देखेंगे आपके जो उल्फा पीस एकॉर्ड है यहाँ पे। फिर विल टॉक अबाउट नागा इंसर्जेंसी इश्यूज। ठीक है, पीस एकॉर्ड जो शिलोंग एकॉर्ड है, सीज फायर एग्रीमेंट 1997 है। फिर 2015 वाला जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है वो पढ़ेंगे हम लोग। देन विल टॉक अबाउट मणिपुर इंसर्जेंसी, मणिपुर में जो मैंने पहले ही बोला था आपको, सेपरेटली पढ़ेंगे एग्रीमेंट्स में। ठीक है, देन इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स में हम लोग और कुछ पढ़ेंगे, जैसे आपके जो बॉर्डर डेवलपमेंट रिलेटेड जो एग्रीमेंट्स है, इंटरस्टेट एग्रीमेंट है, या कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे भी है अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ हैं। सो जैसे यहाँ पे देखो आप, असम अरुणाचल मेघालय इंटरस्टेट बाउंड्री एग्रीमेंट है 2022, कार्बी आंगलोंग एग्रीमेंट है 2021 का, ब्रू रियांग एग्रीमेंट है 2020 का, एनएलएफटी त्रिपुरा एग्रीमेंट है 2019 का, ये सब पढ़ेंगे। फिर हम स्पेशल जो एक्ट है यूएपीए 1967, और जो आपके आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट जो है आपका, सो ये पढ़ेंगे। देन देखिए डिस्टर्ब एरियाज क्या है, फिर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर अगेंस्ट, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस क्या है एएफएसपीए को लेके, फिर रिकमेंडेशंस ऑफ द संतोष हेज कमेटी। ठीक है, ये सब हम देखेंगे। देन ऑपरेशंस के बारे में कुछ देखेंगे, यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस ये सब है, आप देख सकते हो, दिस आर द रेस्क्यू ऑपरेशंस। ठीक है, सो ये भी आपका कवर हो जाएगा। डिफेंस एक्सरसाइजेस भी मैंने लेके आया यहाँ पे, जो रिसेंटली चल रहा है 2024 में। रिसेंट तो अभी जो इंडिया और वियतनाम के बीच हुआ था अम्बाला में, हरियाणा में, इस साल विनबेक्स, सो मैंने पूरा अपडेट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, पॉपुलर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो होते हैं, मतलब तीनों जो विंग्स मतलब इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे, इंडियन आर्मी, एयर फोर्स और नेवी। ठीक है, सो ये सारे एक्सरसाइज है, देखियो। सो दैट्स इट, और भी अपडेट होता रहेगा टाइम टू टाइम, लेकिन अगर आपने ज्वाइन कर लिया, ये पूरा फाइल आपको मिल गया, दिस इज जस्ट अ सिक्योरिटी पार्ट, फिर ऐसे ही अलग अलग पार्ट्स हैं, वो सब भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, सो यू कैन ज्वाइन द कोर्स एंड वॉच द वीडियोस रेगुलरली। सो टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।